Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about the uses of present continuous tense. Before going to start this lesson, let me tell you what we had learnt in the previous class. We had learnt about the rules of present continuous tense of forming sentences, helping verb, main verb, and how sentences are formed in affirmative sentence, in negative sentence, in interrogative sentence, etc. Today we shall learn about the uses. It is equally important to know how and where we use the tenses, and especially present continuous tense, what is the use. Today we shall learn in this video. First uses of present continuous tense is, we use present continuous tense for the action which is going on at the time of speaking. Like, I am teaching you English language right now, you are studying English language right now, you are watching English language videos right now. तो ये ऐसे एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं जब हमारे क्या होते हैं, जो एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग रन कर रहे होते हैं. अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें, फर्स्ट के एग्जांपल्स की बात करें, तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि हम क्या क्या इसमें से स्टडी करते हैं. हम देखते हैं एग्जांपल्स में, आई एम टीचिंग यू English. I am teaching you English. This action is going on at the time of speaking. That's why we use present continuous tense. Again, whatever things you are doing at the time of speaking comes under present continuous tense. Like at this time, whatever things you are doing, if we want to say you are studying, then it's come into present continuous tense. तो present continuous tense का uses कब? At the time of speaking, जो action चल रहा होता है उसी के लिए हम करते हैं. Second one is for a temporary action which is not happening at the time of speaking. Suspended activities के लिए, suspended action के लिए भी हम use करते हैं present continuous tense, जो कि रन तो कर रहा होता है लेकिन एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग रन नहीं कर रहा होता है. Like, Kate wants to work in Italy, so she is learning Italian. अब Kate जो कि इटली में वर्क करना चाहती है, लेकिन वह क्या है, इटालियन इसलिए सीख रही है. अब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वह नहीं सीख रही है, लेकिन इन दिनों वह इटालियन सीख रही है. इन अदर वर्ड्स, इफ आई से आई एम रीडिंग विलियम शेक्सपियर राइट नाउ, तो at the time of speaking I am teaching you, not reading about William Shakespeare, but these days I am teaching, I am studying about, I am reading about William Shakespeare. So the action which is suspended right now, the temporary action which is suspended, we use present continuous tense for that action also. Like the example is, I am reading Shakespeare these days. तो यहां पे उस एक्शन के लिए हम यूज करते हैं जो कि एक्शन हमारे क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं. अब ये तो हमारे कुछ मेन एक्शन हैं. कुछ ऐसे एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहे होते हैं कि जो कि हमारे क्या है, प्री प्लान्ड हैं, ऑलरेडी इन फ्यूचर में एक्शन प्लेस होंगे. कुछ ऐसे एक्टिविटीज के लिए हम यूज करते हैं जो फ्यूचर एक्शन में हो. यहाँ पे हमने आपको एक बताना है कि कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम ऐसे एक्शंस के लिए भी यूज करते हैं जो अभी तो हैपन नहीं हो रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर यूज होंगे, इन फ्यूचर आने वाले कुछ समय में कंप्लीट होने जा रहे हैं. तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लाइक माय फादर इज गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट वीक. तो यहाँ पे क्या है कि अभी नहीं, लेकिन ये प्री प्लान्ड है, नेक्स्ट वीक मेरे फादर जो है कि अब्रॉड जा रहे हैं, इसलिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लाइक अगर हम कहें माय फादर इज गोइंग, another type of example है my
तो यहाँ पे एक्शन नेक्स्ट वीक हैपन होगा, इसके लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। माय फादर इज गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट वीक, या आई एम गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। थर्ड टाइप है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। अगर इनके ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग, अगर इनके मीनिंग की बात की जाए, कुछ वर्ड्स उनके पर्टिकुलर उसी मीनिंग में अगर यूज हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। ऐसे वर्ब्स को हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। तो अगर हम कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारे दो तरह के होते हैं, एक डायनेमिक वर्ब होते हैं, एक स्टैटिक वर्ब्स होते हैं। डायनेमिक वर्ब वह होते हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म बनती है, जबकि स्टैटिक वर्ब्स वो होते हैं जिनकी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनती है। वो जनरली प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में ही यूज होते हैं अगर उनके उस पर्टिकुलर मीनिंग की बात की जाए तो। जैसे यहाँ पे थर्ड में हमने एग्जांपल्स में लिखा है कि कौन कौन से ऐसे वो सेंटेंस हैं जिनमें कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं होगा। लाइक द फॉलोइंग वर्ब ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंस। अब कौन से हैं? वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन। अगर परसेप्शन मीन्स क्या है? कुछ चीजें पूर्वानुमान लगाना। तो इस सिचुएशन में सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, यहां पर इसका यूजेस कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। लाइक आई सी, न कि हम इस सिचुएशन में आई हियर, आई स्मेल, आई स्ट्रेंज टेस्ट, आई हियर, आई स्ट्रेंज नॉइज, न कि आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज। लाइक आई हियर अ स्ट्रेंज noise, I smell a bad smell। तो यहां देखो स्मेल वर्ब भी है और स्मेल वन काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, तो इसलिए आई स्मेल आई बैड स्मेल। तो यहाँ पे इस तरह से यह हमारा जो है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा। सेम वे में अगेन आई नोटिस यू आर बीइंग मिस्चीवियस डे बाय डे, तो यहां पे आई एम नोटिसिंग रॉन्ग होगा। आई रिकॉग्नाइज सही है, आई एम रिकॉग्नाइजिंग रॉन्ग होगा। सेम वे में वर्ब ऑफ अपियरिंग, वर्ब ऑफ अपियरिंग में अपियर, लुक, सीम, अगर इनको अपियरेंस दिखाने के लिए यूज किया जाएगा कि किसी के अपियरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो अपियर, लुक, सीम ये ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट में यूज होंगे। लाइक ही अपियर्स टू बी सैड, नॉट ही इज अपियरिंग टू बी सैड। लुक, ही लुक्स वरीड, इसका यूजेस अगर यहां पे अपीयरेंस के लिए नहीं होगा तो इसका ही इज लुकिंग स्मार्ट। तो इस तरह से ही, आई सीम सैड, आई सीम सैड, नॉट आई एम सीमिंग सैड, इस तरह से इसका यूजेस नहीं होगा। जैसे ही appears टू बी सैड, तो यहां पे appears है, appearing नहीं हो रहा है। सेम वे में अगर हम देखें वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ इमोशन में वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, ये ऐसे वर्ब्स हैं जहां पर हमारे इमोशंस को शो किया जाता है। और जब भी हम इमोशंस को शो करेंगे तो यहाँ पे वर्ब्स हमारे जो हैं कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। इस सिचुएशन में ऑलवेज ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। इसमें देखें, आई वॉन्ट दैट यू मस्ट वर्क हार्ड, आई वॉन्ट यू मस्ट वर्क हार्ड, ना कि आई एम वॉन्टिंग या आई विश यू मस्ट वर्क हार्ड। तो यहाँ पे आई वॉन्ट, आई विश ही होगा, ना कि आई एम वॉन्टिंग, आई एम विशिंग होगा। डिजायर, आई डिजायर यू टू बी हैप्पी, ना कि आई एम डिजायरिंग यू टू बी हैप्पी। फील, आई फील वेरी बैड, लेकिन यहाँ पे फील, लुक, ये आई एम फीलिंग, आई एम यू आर लुकिंग, ये यूज हो जाता है। समटाइम दोनों यूज होते हैं। आई एम फीलिंग नॉट हैप्पी राइट नाउ, या you are looking not happy right now, या you looks not happy right now, या I feel, I do not feel, या I feel not
हैप्पी। तो इस सिचुएशन में लाइक ऑलवेज लाइक के फॉर्म में यूज हो, लाइकिंग नहीं हो, आई एम लाइकिंग। लव हेट, आई एम लविंग नहीं होता है, आई लव होता है। हेट, आई हेट होता है, ना कि आई एम हेटिंग होता है। तो इस तरह से ये ऐसे वर्ब्स हैं जो कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जब भी इनका यूज होगा तो ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होंगे। होप, आई रिफ्यूज, आई प्रेफर, ना कि आई एम होपिंग, आई एम रिफ्यूजिंग, आई एम प्रेफरिंग, ऐसा यूजेस इसका नहीं होता है। तो वर्ब ऑफ इमोशंस, अपने इमोशंस को जब कभी भी एक्सप्रेस करेंगे तो इस सिचुएशन में ये ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट में यूज होंगे। वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ थिंकिंग में जो कि है यहाँ पे थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड, ये जो भी वर्ब्स हैं ये ऑलवेज हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे। आई थिंक, ना कि आई एम थिंकिंग, आई सपोज, ना कि आई एम सपोजिंग, बिलीव, एग्री, आई बिलीव, आई कंसीडर, आई ट्रस्ट, आई रिमेंबर, या ही फॉरगेट्स, ही नोज, he understands, he imagines, she means, she minds, etc. कभी भी ये ing फॉर्म में यूज नहीं होते हैं, ये ऑलवेज। इसलिए हमने यहाँ पर नोट किया है कि आप इसको ध्यान से देखें कि वर्ब हमारे कौन से कैसे यूज होते हैं। अब है वर्ब हैव, जब इनका पोसेसिव मीनिंग के सेंस में हैव यूज होगा तो ऑलवेज यह क्या है, सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। ही वॉन्ट्स अ कार, ही पोसेस अ गुड क्वालिटी, दिस बैग बिलोंग्स टू her, this box contains many articles, the jury consists of many great philosophers। तो यहाँ पे जब कभी भी इनका पोसेशन के सेंस में होगा तो ये ऑलवेज क्या होंगे, सिंपल प्रेजेंट में यूज होंगे, कभी भी ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस क्या हैं। अब हमने इसकी हेल्प से आप एक नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। एग्जाम्पल्स हमने लिखा है, ये वर्ब्स हमने आपको एग्जाम्पल्स कुछ ज़्यादातर बोल के ही बताए हैं। आप इसको बार बार जब सुनेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप गूगल क्लासरूम के थ्रू आप कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। Again, watch the video carefully and prepare our notes. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।